With that, let's move on to Bengal now, where change has come in West Bengal. After years of Mamata Banerjee-led TMC government in the state, the BJP has made its debut in Bengal with a 200-plus majority, delivering a shock to the TMC, one of the biggest third-front parties in the nation. Now, while the BJP has not yet announced a chief minister face in the state, both Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah have time and again reiterated that BJP's Bengal CM will be a person born and raised in Bengal, of Bengali roots and educated in a Bengali medium school. Several names have come up, meanwhile, with the leader of opposition, Suvendu Adhikari's name being at the top. Let's take a look at who the top 5 most probable candidates of the BJP in Bengal are, because this is also a very interesting battle that we saw in West Bengal, and we are now going to talk about the probable CM candidates, because that's the next step for the BJP in Bengal. So let's look at the top, the number 1 probable candidate, Suvendu Adhikari, who is the leader of opposition West Bengal Assembly, and he is a former TMC heavyweight who defeated Mamata in Nandigram as well. So now he has 2 defeats of Mamata to his name in Nandigram and in Bhawanipur as well. So he is the probable candidate at the top. Let's look at another name that has come to the fore, Samik Bhattacharya, who is the current West Bengal state president for BJP, serving member of Rajya Sabha from Bengal since 2024. So another big heavyweight over here who is the probable candidate for the chief minister's seat in West Bengal. Let's look at the third probable name, which is Dilip Ghosh, former BJP West Bengal president, boasts of a strong Hindu voter base in Jangal Mahal area of West Bengal. So this is the third name that is also coming to the fourth. Let's look at Agnimitra Paur, who has in fact also done very well in these elections. She has been re-elected as an MLA from Asansol Dakshin, one of the top women faces from the BJP in West Bengal. And remember that women voters have come out and voted. They have voted, a lot of voters have also voted for security of women in Bengal, which was not possible earlier, which was questioned earlier as well. So this is a name that is also coming to the fore. Let's look at the fifth name, Anandamoy Barman, who is a former MLA from Matiagara, Naxalbari, and he got the highest vote share with 66.5% of votes. So he's got the highest vote share as well, and this is a name that is in fact also coming to the fore. So obviously, like Prime Minister Narendra Modi and our Home Minister have been pointed out through rallies, that obviously this will be a Bengali born person who will become the chief minister, who will hold the reins of the state. Let me go across to my colleague Rainik Datta, who's joining us on this broadcast. Rainik, ये जो नाम सामने आ रहे प्रोबेबल सीएम कैंडिडेट्स के, उसमें बहुत सारे दिग्गज हैं, बात वहाँ पर क्या चल रही है, वेस्ट बंगाल में कैसा माहौल है, किसका नाम सबसे आगे आ रहा है? लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन करने वाला है और सरकार में किसका किसका जगह होगा, मंत्रिमंडल में कौन सा लीडर रहेगा, इसको लेकर ही अभी जो चर्चा जोर जोर से चल रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी का बहुत सारे दिग्गज का नाम जो है ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। बीजेपी का सूत्रों खबर है कि बीजेपी के अंदर में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर चर्चा है। क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा में सबसे आगे अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे जो दिग्गज जिसके भरोसे बीजेपी इस बार प्रचार में आगे आए थे, लगातार प्रचार किए थे। शुभेंदु अधिकारी एकदम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में भवानीपुर से कॉन्टेस्ट किए थे और ममता बनर्जी को 15,000 के ऊपर वोटों से हराया है भवानीपुर एरिया से। उसके साथ साथ ही नंदीग्राम में भी 2021 साल में ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु अधिकारी। 2026 साल में भी नंदीग्राम में 9,000 के ऊपर वोट शुभेंदु अधिकारी को मिला है। तो शुभेंदु अधिकारी का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, उसी तरीके से
दिलीप घोष का नाम भी सामने आ रहा है। ह्यूज मार्जिन से दिलीप घोष इस बार खड़गपुर जीता है बीजेपी का होकर। उसके साथ साथ ही और भी बहुत सारे दिग्गज के नाम भी सामने आ रहा है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर। और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल का जो नया मंत्रिमंडल गठन होने वाला है, उस मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे दिग्गज का नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे दिग्गज का जो चेहरा, इसको लेकर चर्चा भी चल रहा है, क्योंकि एक तरफ अग्निमित्र पॉल, रूपा गांगुली जैसे वरिष्ठ लीडर जब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उसी तरीके से दिग्गज शपन दासगुप्ता, दूसरी तरफ एक्टर रुद्रनील घोष, इनका नाम भी सामने आ रहा है। जिस तरीके से इन लोगों की तरफ से लड़ाई किया गया है, लड़ाई के मैदान में जिस तरीके से वो लोग लगे हुए थे, जिस तरीके से बीजेपी को होकर लगातार 2019 के बाद से काम करते हुए नजर आए हैं, इनका नाम भी सामने आ रहा है मंत्रिमंडल में। इसके अलावा बीजेपी का सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोलकाता छोड़कर जो ग्रामीण साइड है, यानी पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, आसनसोल, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे दिग्गज का नाम सामने आ रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। यानी पूरा बंगाल में ये जो नया सरकार गठन होने वाला है, ये जो मंत्रिमंडल गठन होगा, बीजेपी का सूत्र के हवाले से खबर है कि ये कोलकाता बेस्ड, यानी कोलकाता में रहने वाले लोगों को लेकर मंत्रिमंडल तैयार होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है, और ये मंत्रिमंडल में हर एक जगह का लोग शामिल हो सकता है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। जिसमें कोचबिहार यानी कोचबिहार साइड, यानी नॉर्थ बंगाल का हिस्सा कोचबिहार से निशित प्रामाणिक का नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ शिलीगुड़ी यानी नॉर्थ बंगाल का और एक जगह, उस जगह से शंकर घोष का नाम सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद से गौरी शंकर घोष का नाम सामने आ रहा है। उसी तरीके से आसनसोल से अग्निमित्र पॉल का नाम सामने आ रहा है। सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली का नाम सामने आ रहा है। हावड़ा शिवपुर से रुद्रनील घोष का नाम सामने आ रहा है। यानी पश्चिम बंगाल का ये जो मंत्रिमंडल गठन होने वाला है, इस मंत्रिमंडल में बहुत सारे दिग्गज शामिल हो सकता है, जो सिर्फ कोलकाता बेस नहीं, कोलकाता का बाहर, यानी पूरा पश्चिम बंगाल का हर एक हिस्सा से वो लोग शामिल हो सकता है मंत्रिमंडल में। यानी बने रहे हमारे साथ रैनिक, वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्लोइंग आउट।